And on to debate number 2. The dangle over the election to the Wrestling Federation of India has just escalated. A day after Brij Bhushan Sharan Singh's aide, Sanjay Singh was elected as the WFI president, India's champions have been left heartbroken. While Olympics bronze medalist Sakshi Malik was left in tears as she announced her decision to quit wrestling, Bajrang Punia has decided to return his Padma Shri. Writing to the Prime Minister, Bajrang Punia said that after the Wrestling Federation elections, the champions who had accused Brij Bhushan Sharan Singh of sexual harassment were left crying all night. He said that after this, if someone addresses him as Padma Shri, he would feel disgusted over his inability to fight for justice. हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रिज भूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। मैंने पहले भी बताया था, बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे। जो सम्मान हमें देश ने दिया है, उस सम्मान के साथ मुझे लगता है कि हम बेटियों को वो सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगा कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ, इसलिए वापस करने आया था। लेकिन बात भाई प्रशासन की भी ठीक है, मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली थी मिलने की, और उनका इतना बिजी शेड्यूल रहता है प्रधानमंत्री जी का, तो ऐसे कोई भी आदमी नहीं मिल सकता। Brij Bhushan's aide Sanjay Singh secured 40 votes against 7 votes of the opposing candidate Anita Sheoran. Sanjay Singh will take over the reins of Brij Bhushan Sharan Singh, who had to step aside after wrestlers accused him of sexual harassment. Opposition has also joined these wrestlers in their attacks on the election, drawing parallels with Vice President Dhankar's insult incident. The opposition has said that this was an insult to not just women all over the country, but also the Jat community that Sakshi Malik belongs to. Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra also met the heartbroken wrestlers to express her solidarity with them. I came here as a woman because I think what has happened to these girls is, it's beyond disgusting. I think you as a woman would feel the same. Hitting back at the criticism, the BJP said that the issue was being politicized unnecessarily. वहाँ तो राजनीति हो रही है जी, शुरू से राजनीति है, ग्रुप है और उसमें राजनीति से सिवाय ज्यादा कुछ नहीं है। 10 दिन बाद देखोगे फिर आकर मैच खेलने लग जाएगी। भाई जो राजनीति करेगा ना, फिर एक तरफ लगना पड़ेगा उनको, या राजनीति करे या गेम करें, एक साइड तो लगना ही पड़ेगा। गेम की आड़ में बैठ करके राजनीति थोड़ी कर सकते हैं। बजरंग पूनिया है, गेम एक बार मेडल ले आया, अब क्या उस देश को मोल लेगा वो। You're watching the News Hour at 10, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. And for more on this, let's go across to our guest. With us is Professor Vidhu Rawal, who's the leader of the BJP. Rakesh Singh is a coach and General Secretary of the Haryana Wrestling Association. With us is Mukul, who's a former international wrestler. Advocate Nikhil Jain is a political analyst joining us. He leans towards the Congress party. But I want to start first and foremost with Dr. Sunita Godara, who's an Asian marathon champion, joining us here in our studio. Dr. Sunita Godara, we saw the press conference yesterday. We saw the images come out of that. And this is a question that many are asking, that despite the fact that there's a case that the wheels of justice, as we know, are moving slowly, at the end of the day, you have a situation where one of the players has gone back and given back his Padma Award, another has retired from the sport. Is this really going to send out a positive message to sports persons out there? Not at all. And secondly, it's a very negative message which is going in the society. Whatever is happening with the Olympic medalists, with the sports stars, it is not done thing, you know. And where we are lacking, it's a sports law which we don't have, and all the federations and the state associations, when there was no overhauling or any change, then the election, whatever is happened, it was very natural. It was supposed to be like this only, you know, if you don't change the those 40 people who are different places, you know, heading the associations, and they have only voting power to vote the federation secretary or president or whatever. So this is one side. Now, when we don't have any ethics commission, see, government has done wonderful job by bringing NADA
as per rule of WADA, World Anti-Doping, and NADA is National Anti-Doping, and backed up with the anti-doping bill, which came in August 2022 in BJP Sarkar. So they have done such a wonderful job to curb the drug abuse menace in doping system in sports. Okay. So why can't they bring the ethics commission panel, and where all the officials, all the athletes, all the junior staff, whenever they are in distress, it's not only a sexual harassment. Since you're asking it a is question of the government, all kind of distress, you know. Let me can bring go and ask for justice. I think that's a fair point. Let me put that question across to Professor Vidhu Raval. Professor Vidhu Raval, the question being asked is, why can't this ethics panel be put in place where any kind of problem, if there is harassment, there is adequate forum for redressal? Why has that not happened is the question coming in from Dr. Sunita Godara. माधव जी, ये एक बहुत अच्छा खेल सुधार इन्होंने अभी बताया है। इस प्रकार से और भी सुझाव आते रहे हैं। इससे पहले भी जैसे एंटी डोपिंग के बारे में बात की जा रही है, इस प्रकार के प्रस्ताव आते रहे हैं और सरकारें उस पर जो है आगे बढ़ती रही। अगर इसको इस विषय से केवल जोड़कर देखा जाए तो मुझे लगता है कि न्याय नहीं होगा। अभी एक नया फेडरेशन वहां पर बना है, लोग चुने गए हैं, देखते हैं किस प्रकार से वो काम करते हैं। अगर बेहतर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर खेल का बेहतरी होगी। पिछले कुछ समय से प्रोफेशनलिज्म आया है खेल के अंदर, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ साथ जो भी घटनाक्रम है, अगर मुझे लगता है इफ द पॉलिटिकल प्लेयर्स वो अगर दूर रहें इस सारे विषय से, तो कहीं ना कहीं जो है चीजें जो है सैनिटीज जो है वो रिटर्न करती हैं। कहीं ना कहीं हमने देखा कि पिछले थोड़े विषय पे पॉलिटिक्स हो रही है और सवाल ये उठ रहा है, आपने रणदीप सिंह सुरजेवाला का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा जो विजेंद्र सिंह के साथ किया था, उनका ये सवाल उठ रहा है कि महिलाओं का इस तरह से हैरेसमेंट अगर होता है तो क्या देयर शुड नॉट हैव बीन आइदर अ वुमन लीडर और अ प्रेसिडेंट ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन इज अ क्वेश्चन दे आर आस्किंग, एंड दे आर आल्सो आस्किंग दैट बीजेपी की सारे रेसलिंग फेडरेशंस में इतनी इन्फ्लुएंस है, तब भी इनको न्याय क्यों नहीं मिला? देखिए, बीजेपी का इन्फ्लुएंस है, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं। कांग्रेस के बहुत सारे कांग्रेस से जुड़े हुए लोग भी फेडरेशंस के चुनाव लड़ते हैं, अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग भी, क्योंकि एक बड़ा दल है, बहुत सारे दल, बहुत और भी काम दल के कार्यकर्ता और भी कार्य करते हैं, उनमें से कुछ लोगों ने जरूर चुनाव में भी रहे होंगे। लेकिन बड़ी बात क्या है कि जो चीजें न्यायालय के विचाराधीन है, जो तो उसमें आकर इस प्रकार से बात करना, एक तो वो ठीक नहीं। Okay. दूसरी बात जो कही है माधव जी इन्होंने कि किस प्रकार से इन्होंने ये इस बात को रेखांकित किया है कि बीजेपी इसमें कुछ नहीं करती। बीजेपी ने और महिला लीडर की बात कही है, तो कहीं ना कहीं पीटी उषा जब इस विषय पर उन्होंने काफी कहा, तो क्या कांग्रेस वाले हमारे जो भाई हैं या हमारे जो विपक्षी भाई हैं, क्या उन्होंने उनका स्वागत किया था? मैरी कॉम की अध्यक्षता में माधव जी एक समिति बनी जो एक्शन ले रही थी, जो हाई लेवल कमेटी थी, जो सारे एक्शंस ले रही थी, उसको भी अस्वीकार कर दिया। यानी महिला भी हमारे मुताबिक चाहिए। ये चीजें माई वे और हाईवे वाला जो कंसेप्ट है ना, okay, it's a my way or highway approach, Nikhil Jain, and you're unnecessarily politicizing this issue. That's a statement coming from BJP. Please respond. Madhav, the panelist before me is saying that we should not politicize the issue, and at the same time, in the same breath, he's saying that many people related to the Congress and related to the BJP contest in these Wrestling Federation Association elections of the states and the country. The former president was a sitting BJP MP, so I'm sorry, this is not something that can be divorced from politics. And even if these political people were not involved in the federation, they should not be divorced from politics. Fact of the matter is that you have the women wrestlers of the country alleging, and not one but many of them alleging, that a sitting president of the Wrestling Federation was sexually assaulting minors. The person continues to sit in the parliament while more than 140 MPs of the opposition have been suspended, and now the person who's been elected as the president is somebody who is a close aide of Brijbhushan Singh. And two very important things that your viewers must know. Once this Sanjay Singh person became the president, Brijbhushan Sharan's son posts on social media, dabdaba tha, dabdaba rahega. We were just a while ago talking about perceptions. Is this the right message for his son to be putting out on social media? And secondly, in June, Anurag Singh Thakur, the sports minister of India, had promised to the women wrestlers that we are going to make sure that your voices are heard when the president of the federation is made. Now the BJP is turning around and saying that we can't interfere in these elections and this is an autonomous body and this and that. But the point is, why did you promise that to the women wrestlers of the country? And another panelist had very correctly pointed out that
at the end of the day, the BJP does have a strong influence in these elections, and they could have taken a more progressive step, but instead what they've chosen to do is tell the people of the country, tell the women of the country that if there is somebody प्रोफेसर विदु रावल, जो आश्वासन दिए गए, जो वादे किए गए, उनको पूरा नहीं किया गया। सिंपल क्वेश्चन, जो आश्वासन दिए गए, जो वादे किए गए, उनको पूरा किया और खिलाड़ियों ने कभी भी उस विषय पर दोबारा बात नहीं की। हाँ, जब तक पॉलिटिक्स जो है उसमें हावी रही, तब तक खिलाड़ी जो है अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे थे। द मोमेंट खिलाड़ियों ने इन पॉलिटिकल प्लेयर्स से कहा कि आप थोड़ा सा दूर हट जाइए, चीजें जो है बहुत सही रास्ते पर निकली थी, इन चीजों को रिजॉल्व किया गया था। पर आप कह रहे हैं कि ये खिलाड़ी साक्षी मलिक रिजाइन कर रही है रेसलिंग से, बजरंग अपना पद्मा अवार्ड वापस कर रहे हैं, ये सब पॉलिटिक्स से प्रेरित है? देखिए, मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा इसके अलावा, जो निखिल जी ने कही। उन्होंने कहा कि फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे फेडरेशन के, वो भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, तो उनके चैलेंजर जो थे वो कांग्रेस के भी राज्यसभा सांसद है दीपेंद्र हुड्डा, हु इज अ प्लेयर, जो कि 2011 से लगातार बृजभूषण से लड़ रहे हैं, विभिन्न फोरमों पर लड़ रहे हैं, और वो क्योंकि चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार से यहाँ पर आकर मेडल कर रहे हैं प्लेयर्स के साथ, जो है किस प्रकार से वो कुश्ती के मैट से बाहर उखाड़कर उनको जंतर मंतर के मैट पर लेकर आते हैं। कभी उनसे इस प्रकार की बातें कहते हैं, खिलाड़ी उसको डिनाई कर देते हैं बाद में आकर। बड़ा विषय क्या है? Okay, yeah. Sunita Godhara wants to respond to you on this. This is not the point. The point is, our Olympic medalist is crying, retiring, hanging her shoes. So at least, you know, one should have that type of guts to say something, to just to pacify her, you know. Nobody is speaking anything. Secondly, when Padam Shri Bajrang Punia is going and surrendering his medal, at least you know, government of the day, people should say something to pacify him. Why these stalwarts, these sports stars are given promises and after that they are betrayed? Yes. That is the point. Let me bring in Rakesh Singh, who's back with us. Rakesh Singh is a staunch defender of Mr. Brijbhushan Sharan Singh. Rakesh Singh जी, आपने देखा होगा आज विजेंदर ने कहा कि सब लोगों को डर लग रहा है बोलने में, उनको लग रहा है कि किसी ना किसी तरह का एक्शन लिया जाएगा उन पे, ये काला दिन है उनका कहना है, क्या कहेंगे? देखिए, ये कांग्रेस की सोची समझी चाल है और दीपेंद्र हुड्डा जी करीब 11 साल से आहत हैं इस बात से। जब उनके फादर चीफ मिनिस्टर होते थे तो उनका मुकाबला बृजभूषण शरण जी से हुआ था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। तो आज वो पहलवानों के कंधे पे बंदूक रख के फिर इस WFI को कब्जाने का काम कर रहे थे। और ये जो पहलवान जिस तरह का नाटक कर रहे हैं, अपने अवार्ड वापस दे रहे हैं, ये भारत सरकार ने अवार्ड दिया है, बीजेपी ने नहीं दिया है। रोते हुए गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस से, अवार्ड की जो बेइज्जती कर रहे हैं, रेसलिंग ही त्याग दिया है यार, अब उसको नाटक कह रहे हैं। सम्मान मिला, पद मिला। रेसलर कहां से नाटक कर रहे हैं सर? उन्होंने तो छोड़ दिया सब कुछ। इनकी ये एक ही परिवार है, एक परिवार के लोग हैं, जीजा साली हैं और उनके सगे संबंधी हैं, और इसमें कोई पहलवान इन्वॉल्व नहीं है। ये कुश्ती छोड़ चुके हैं। और आपने जो केस अभी कोर्ट में विचाराधीन है उसके बारे में तो आप भूल गए, जो गंभीर आरोप लगे हैं बृजभूषण जी पे, जिसकी पुलिस ने तहकीकात भी की है और काफी कुछ उसमें पाया भी है एविडेंस के तौर पे। कोर्ट का मामला है तो वो कोर्ट संज्ञान लेगा उस बात का। तो फिर कैसे कह रहे हैं कि ये नौटंकी है? हाँ जी, कैसे कह रहे हैं आपकी ड्रामा है अगर कोर्ट ने संज्ञान लिया हुआ है? हेलो, आप किस आधार पे कह रहे हैं कि ड्रामा है सर? अगर कोर्ट ने संज्ञान लिया हुआ है तो किस आधार पे कह रहे हैं कि ये ड्रामा है? राकेश जी, मुकुल जी, आप क्या कहेंगे राकेश जी से? राकेश जी का कहना है ये सब ड्रामा है, सब नौटंकी है। राकेश जी को तो मैं एक ही राय दूंगा कि ये तो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस और दीपेंद्र हुड्डा की बात रखते हैं, इनको बोला जाता है। दीपेंद्र हुड्डा जी वो शख्स हैं, जब उनकी सरकार थी तो हरियाणा में इतने अखाड़े खुल गए, इतने मैट दे दिए उन्होंने, अखाड़ों में इतनी सुविधा दे दी। और जो साक्षी मलिक ने अभी अलविदा कहा है रोते हुए, उसने हंसते हुए जो अलविदा कहना चाहिए था। देश देख रहा है इस बात को, पद्मश्री रोड की पटड़ी पर रखा है। प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी और खुद खेल मंत्री जी ने बुला के ने वो आंदोलन में जब उनको वादा किया था
कि तुम्हारा ही मतलब जो एक महिला हमें दे दो कोई या फेडरेशन कैंडिडेट, तो उन्होंने महिला का नाम दिया और खुद उन्होंने बोला था कि हम भी वोट डलवाएंगे और तुम्हारा ये अध्यक्ष बनेगा, कुश्ती को पाक साफ रखेंगे। आप आज देख रहे हो जो संजय सिंह फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं उनके गले में माला कम है, ब्रजभूषण शरण के गले में माला ज्यादा है और वो एक तरीके से धमकी दे रहे हैं इस बात के, दम है दमदार हूं, दमदारी से ही रहूंगा। अब मैं देखूंगा कौन से पहलवान आगे आएंगे और अपनी मनमानी करेंगे तो ये नौटंकी बताएंगे। इन्होंने पहले ही बोल दिया है मनचाहे के नाम कैंप में जाएंगे, मनचाहे लोग के नाम। तो राकेश जी आप मानेंगे कि ब्रजभूषण जी अभी भी कंट्रोल कर रहे हैं पूरे रेसलिंग फेडरेशन को? कि एक महिला लोगों को चैलेंज कर रहा है ओपनली, तो कंट्रोल तो पूरा इन्हीं के है। हेलो, हाँ राकेश जी, पूरा ब्रजभूषण जी के कंट्रोल में ही है। जिस तरह के बयान दे रहे हैं ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के कंट्रोल में है पूरा रेसलिंग फेडरेशन। देखिए सुनिए, देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इन्होंने एक महिला खिलाड़ी को मैदान में उतारा था, उसके 7 वोट आए, संजय सिंह को 40 वोट मिले और बहुत निष्पक्ष तरीके से यह इलेक्शन हुआ। और जो रेलवे के अधिकारी हैं मिस्टर लोचप जी, वो जनरल सेक्रेटरी बन के आए हैं और हमारे हरियाणा का ही है, लेकिन वो आसाम से आया देवेंद्र काद्यान, वो उपाध्यक्ष बना है। तो इलेक्शन बहुत फेयर कंट्रोल अभी ब्रजभूषण जी का ही है, मनमानी इनकी थोड़ी चलेगी। नहीं, पर ब्रजभूषण जी का ही कंट्रोल है। मैं इलेक्शन की निष्पक्षता के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ब्रजभूषण जी का अभी भी कंट्रोल है रेसलिंग फेडरेशन। यहाँ पे देखिए वो 7 बार के सांसद हैं। नहीं, उनका कोई कंट्रोल नहीं है। संजय सिंह तो फिर ऐसे बयान कैसे दे रहे हैं? फेडरेशन आई है, बहुत सुंदर तरीके से कुश्ती को चलाएंगे। हाँ जी मुकुल जी, कोई कंट्रोल नहीं है उनका रेसलिंग, क्या कहेंगे मुकुल जी? संजय सिंह की नई टीम बन के आई है। जैसे जश्न उनके घर से जश्न शुरू हुआ है, जैसे जश्न मन रहा है, उसके गले में माला के नाम डली हुई है। पूरा देश देख रहा है कि पूरा कंट्रोल ब्रजभूषण शरण का है। 13 लोग के नाम फेडरेशन में है और वही फेडरेशन को चलाएंगे। एक तरीके से ब्रजभूषण ही फेडरेशन को चलाएंगे, ये जग जाहिर दिख रहा है। आगे आने वाले कुश्ती में जितने भी जो हमारी जो लड़कियां हैं, हमें इस बात का डर है हम के नाम घर वाले शायद उनसे कुश्तियां ना करवाएं। मुझे ठीक है, वो के नाम उनको एक खौफ है क्योंकि पहले भी एक नाबालिग से शोषण हो चुका है, उसका नाम उन्होंने वापस करवाया। अभी न्यायपालिका पर हमने विश्वास है, लेकिन वहां भी हमें एक ही डर है कि वहां भी सब कुछ मैनेज कर लिया जाएगा जैसे फेडरेशन का चुनाव कर लिया गया। यहां से यही तो बात थी कि ये 7 बार का सांसद होते हुए इन्होंने कुश्ती में क्यों चिपका हुआ है? और भी तो है बहुत। सुनीता गुदारा ऑलमोस्ट ऑफ टाइम। सुनीता गुदारा, उसका लड़का श्रीराम के नाम पोस्टर दिखा रहा है, मेरा बाबू दमदार है, मेरा बाबू के नाम है, उससे खौफ है। तो ये किसको चैलेंज दे रहे हैं? ओके, the thing is, the moral duty of the president of federation is to see the welfare of the players, and who are at the top? The Olympic medalists, all the awardees. So the moral duty says the moment she was retiring or the Bajrang Punia was going to surrender the Padam Shri, he should have called them or said something. He should have also given these Vidhu Raval, in favor of athletes. Vidhu Raval, in favor of athletes. Vidhu But Raval, they are keeping quiet. ये इस्तीफा दे रहे हैं, nobody, the current president is not even talking to them. That's the situation on ground. नहीं, that's not true. That's absolutely false. क्यों? क्योंकि जो मैंने जो पहली स्टेटमेंट संजय सिंह की सुनी है, उन्होंने कहा है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। उन्होंने सभी जो डिसग्रंटेड हैं अपने रेसलर्स, उनको भी इनवाइट किया है कि आइए आप भी जो है। मैं पूरा कर लूं प्लीज, मैं पूरा we are out of time, we don't have much time now. Forget about everything. Now the sports ministry's duty is to open up the ethics commission, ethics panel, so that all these culprits who are doing professional misconduct in sports, they are banned from sports arena. All right, we'll have to wrap it there. I'm sorry, I have to interrupt both of you. Professor Vidhu Raval, Rakesh Singh, Mukul, Dr. Sunita Godara, Advocate Nikhil Jain. We'll have to wrap up this debate here because we're completely out of time, but certainly not an episode that has covered us with glory. Remember that UWW has also suspended the Wrestling Federation in this period. Certainly not a matter of pride for all Indians who've looked up to our wrestlers over the last several decades. With that, it's a wrap on News Hour Agenda this evening.